Let's we start with our chapter number 9. What we have left, that is the enzymes. Here we will discuss whatever we have led, that is from the chapter number 9 means enzymes. Look here on the page number 154. Page number 154. Page 154. And that is the part of the chapter number 9. And topic is 9.12. So look here, enzymes. Almost all enzymes are proteins. Look, protein. Protein is a very wide group of polypeptide, means the polymer form. Some proteins are acting as our structural protein which are present in our muscles, etc. Some are acting as hormones. Some are behaving as an enzyme. Some are behaving as some immunoglobulins for our immunity. When we consider enzyme, they are always proteins. When we consider hormones, some of the hormones are proteins, some of the hormones are polypeptides, some are the steroid. But when we consider protein, enzyme, these all enzymes are only protein. But there are some nucleic acid that behave like enzyme. They are called ribozymes. Look, nucleic acid. When we consider nucleic acid, those are the RNA, particularly rRNA, ribosomal RNA. They are acting as an enzyme. This we will discuss in the chapter number 6 of the standard 12. This ribosomal RNA and enzyme, both RNA, ribonucleic acid, and enzyme, both are combined. When fused these two terms together, it is known as ribozymes. One can depict an enzyme by line diagram. एक सिंपल लाइन डायग्राम जैसी कैलकुलेशन से तुम एंजाइम को समझ सकते हो. सिंपल, बहुत टेंशन नहीं लेने का. An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acid sequence of the protein. As we have discussed, what are the proteins? Proteins are the polymer of the amino acid. These amino acids are linked together by the peptide bond. So here also when we consider enzymes, in these enzymes, these amino acid sequence, these all round structure are the amino acid, these are the peptide bond. This amino acid sequence is known as polypeptide, and in this polypeptide, in this enzyme, this is the primary structure. When this primary structure moves like this one, ऐसा तो सेकेंडरी टर्सरी सब बनता है. वो आपने देखा होगा उत्तरायण में वो बनता है ना दोरे का पिंडा, ऐसा पूरा बन के ये टर्सरी फॉर्म बनता है. तो बोलो आपने जब भी वो दोरे के पिंडे को देखा होगा तो उसमें क्या होता है, पूरा ऐसा पिंडा आता है तो उसके ऊपर से ऐसे 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 सब एक नेट जैसा दिखता है. बस ऐसा ही हो जाता है इसमें पूरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होके. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर. बोलो पूरा ऐसा प्राइमरी था, उसमें से सेकेंडरी टर्सरी सब कुछ बन जाता है. An enzyme, like any protein, has a secondary and tertiary structure. When you look at a tertiary structure, you will notice that the बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इट्स सेल्फ. देखो बैकबोन पूरा बीच में, वो पिंडे के लिए बीच में अंदर कुछ सपोर्ट रहता है. यहाँ तो ऐसा नहीं, पहले ही ये सिंपल वायर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ये जो वायर है इसका, ये जो भी कुछ होता है वो कान में लगा के पढ़ने का, बरोबर है. बोलो ऐसा अपने वायर है तो पहले क्या हुआ, उसका ऐसा 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 उसके ऊपर ही बैकबोन बना सपोर्ट ने, उसके ऊपर ही फिर ऐसा 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 पूरा हो गया. बोलो ये पूरा ऐसा हो गया तो बोलो ऐसा हो जाएगा तो क्या होएगा, पूरा जब ऐसा अपना बन जाएगा तो यहाँ से सब नेट जैसा बनेगा. You will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. उसके ऊपर ही folding हुआ है. The chain crisscrosses itself and hence many services are
सर्वाइसिस और पॉकेट्स आर फॉर्म। बोलो इसके ऊपर ये सर्वाइसिस ऐसे हैं, ऐसे 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 होल जैसे नेट के ऊपर के होल जैसे बनते हैंगे, ये जो बनते हैंगे वो सब है। ये जो है इसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होता हैगा। तो बोलो एक सबस्ट्रेट में ऐसा हमने बोलो इफ सिंगल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इन 1 मिनट। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, वन सबस्टेंट फिटेड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवंथ ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, ऐसा नंबर्स ऑफ ईयर। सो इन दैट वन मिनट लिमिट नंबर्स ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टर्न्स इनटू द प्रोडक्ट। When you look at the tertiary, you will notice the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many cervices or the pockets are made. One such pocket is known as active site. Everyone is known as the active site. Every को क्या बोलेंगे, active site. And that active site is for what? For the substrate. एक्टिव साइट सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के लिए। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट नहीं है, एक्टिव साइट किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए है। Many cervixes of one such pocket is an active site, and active site of an enzyme is a cervix or into which the substrate it fits। उसके अंदर कौन फिट होता हैगा, ये सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट फिट होता हैगा। Thus enzyme थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शन एट अ हाई रेट। अभी आपने समझाया, ऐसे एक ही यूनिट में एक ही सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बनता था, और यहाँ पे क्या हुआ, एवरी एक्टिव साइट को पूरा होल्ड करके रखता है। तो एवरी सबस्ट्रेट, एवरी एक्टिव साइट में एक एक सबस्ट्रेट आता है, तो सभी को रिएक्शन करने को चांस मिलता है। तो क्या होता है, नंबर्स ऑफ सबस्ट्रेट टर्न्स इनटू द प्रोडक्ट, नंबर्स ऑफ सबस्ट्रेट टर्न इनटू प्रोडक्ट एट ए टाइम। Enzyme catalysis differ from inorganic catalysis many way। इनऑर्गेनिक हम केमिस्ट्री में जो कैटेलिक एक्टिविटी हम समझते हैं, ये एंजाइम भी कैटेलिक ही है, बट वो बायोकेमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट। इनऑर्गेनिक में जो रहता हैगा, इनऑर्गेनिक में जो भी कैटेलिक होता हैगा, तो बोलो वो सबस्ट्रेट पे इफेक्ट करता हैगा। उसकी सबस्ट्रेट पे इफेक्ट आने से वो जो कैटेलिक है वो अपने कैटेलिक से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। अब जनरली क्या होता हैगा, जब इनऑर्गेनिक कंडीशन में इसका हम टेम्परेचर रेस करते हैंगे, व्हेन वी टेम्परेचर रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। बट हियर व्हाट हैपन, हियर व्हेन वी कंसीडर एंजाइम मीन्स इन द लिविंग फॉर्म, व्हाट हैपन व्हेन दिस सबस्ट्रेट एंड देयर एंजाइम्स आर देस मीन्स कैटेलाइट ठीक है, वो एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा है। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो बोलो ये जो एंजाइम्स है वो एंजाइम क्या हैगा, पॉलीमर फॉर्म है। किसका पॉलीमर हैगा, तो एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड फॉर्म है। तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर दीज बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड वंस अगेन फॉर्म। तो जो पर्टिकुलर बॉन्ड होते हैं वो ऐसे जिग होके ऐसे होके बदल जाते हैं। बोलो वो बॉन्ड बदल जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो मेन स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो जो मेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, व्हाट डज इट मीन, दिस एंजाइम बिकम इनएक्टिव। Catalyst is many way, but one major difference needs to mention. Inorganic catalysts work efficiently at a high temperature and a high pressure, बरोबर है। While enzyme get damage at a high temperature, डैमेज को अंडरलाइन करो और बाजू में लिखो डीनेचर्ड। क्या हो जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है, उसकी नेचुरल कंडीशन लॉस्ट हो जाती है। डिफर में वाइल एंजाइम गेट डैमेज्ड, उसको डीनेचर लिखा हाई टेम्परेचर से मोस्ट ऑफ अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हो normally live under the extremely high temperature, example hot vents and sulfur springs। वो गर्म पानी जिसमें से निकलता है ज़मीन में से, उसके अंदर जो रहते हैं कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटेलिटिक पावर इवन एट अ हाई टेम्परेचर अपॉन 80 to 90, क्योंकि उनका तो नॉर्मल है।
बाकी सबके लिए क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर दैट गेट डीनेचर. Thermal stability is thus an important quality of the such enzyme isolated from the thermophilic organism. Highlight करो क्या, thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermophilic organism. ये एंजाइम आपको बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में 12th में आएगा. जब मैं याद कराऊंगा, देखो ये आ गया है हमको. चलो इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन और उसके रिलेटेड थोड़े पॉइंट आज डिस्कस करेंगे. दैट वी विल डिस्कस हियर. टॉपिक नंबर 9.12.1. बोलो केमिकल रिएक्शन. ओहो, केमिकल रिएक्शन तो, बायोकेमिकल रिएक्शन तो कितने सब होते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम्स. तो एंजाइम समझ को, केमिकल रिएक्शन समझना पड़ेगा. Let us first understand the chemical reaction. Chemical compounds undergo two types of changes. A physical change simply refers to a change in a shape without breaking of a bonds. तो बोलो कोई भी केमिकल के अंदर दो टाइप के चेंजेस आते हैं. दो केमिकल के अंदर जो फर्स्ट चेंज है, एक को हम बोलेंगे फिजिकल. फिजिकल जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज ओनली चेंज इन स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट. जैसे वाटर H2 है, बट वो बोलो उसका स्टेट सॉलिड है जिसको हम आइस बोलेंगे, उसका स्टेट लिक्विड है जिसको हम वाटर बोलेंगे. H2O जब गैसियस फॉर्म है उसको हम वेपर बोलेंगे. लिक्विड है तो हम उसको वाटर बोलेंगे. सॉलिड है तो आइस बोलेंगे. बट इन ऑल कंडीशन वो H2O ही है. उसके कोई बॉम्ब फॉर्म भी नहीं हुए, ब्रेक भी नहीं हुए. A physical change is simply refers to a change in a shape. वो प्लास्टिक को मोल्ड करके बनाते हैं, जब उसका शेप चेंज होता है. Without breaking a bond, thus a physical process. This is a physical process. Another physical process is a change in the state of a matter. ये जो अभी हमने किया, बोलो प्लास्टिक को मोल्ड करके अलग अलग बनाते हो, प्लास्टिक वैसा ही प्लास्टिक रहता है, वो उसका शेप चेंज हुआ. यहाँ पे मैटर चेंज हुआ. When ice melts into water or when water becomes a vapor, these are also physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during the transformation, this will be called a chemical reaction. बोलो chemical reaction कब बोलेंगे, तो बोलो यहाँ पे जो दिया है वही हम कहेंगे. तो बोलो chemical reaction आएगा, chemical change जब bonds are broken and new bonds are formed. ये जब होएगा तो हम उसको है ना बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन. As for example, barium hydroxide BaOH twice plus H2SO4. तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम सल्फेट. मीन्स ये BaOH के साथ में बॉन्ड ब्रेक करके SO4 के साथ में आ गया, और ये बाकी का था वो ये इसने इसके साथ में ब्रेक करा और इसके साथ में बना के ने ये वाटर बना दिया. Is an inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of the starch is glucose in as organic chemical reaction. हमने पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट समझाएगा. बोलो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज. When glucose molecules form bond with the glycosidic one another glucose, it is maltose. When numbers of the glucose are form a simple chain, it is known as the amylose. But when glucose molecules, बोलो ये सिंपल चेन के बदले बोलो उसकी ब्रांच बन गई, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, दिस ग्लूकोज एंड दिस बॉन्ड्स आर द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, दिस और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. तो बोलो ये जो ब्रांच वाला बना उसको ने बोलेंगे एमाइलोपेक्टिन. और ये एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, स्टार्च बोलेंगे. अब बोलो क्या होता है इसमें, बरोबर अपने समझना. जब ये ग्लूकोज के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है तो बोलो क्या होता है, वाटर रिलीज होता है. अब हम जब यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे ना, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वाटर ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. सो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फिजिकल और द
chemically similarly hydrolysis of starch is turns into glucose is an organic chemical reaction. Rate of a physical or chemical process is referred to a amount of the product पर यूनिट टाइम. आपको एक मिनट मीन्स 1 मिनट 1 सेकंड 1 आवर 1 डे 1 ईयर वो उसके अंदर कितना मिला उसको हम रेट बोलेंगे. बट एग्जैक्टली हम कहीं 1 मिनट 1 आवर के लिए रिएक्शन नहीं करते. सपोज 9.6 मिनट के लिए हुआ तो व्हाट वी विल डू 9.6 हाउ मेनी मॉलिक्यूल टर्न्स इनटू द 96,000. तो ये अपने करके हम जो भी इसका आएगा वो हम यहाँ पे अपने रखेंगे. तो बोलो क्या होएगा. हमको नहीं पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन 1000 यूनिट टाइम में इतना हैगा. तो डेल्टा पी प्रोडक्ट कितना मिला एक उसके लिए कितना आया उससे डिवाइड कर देने का. रेट कैन ऑल्सो बी वेलोसिटी व्हेन द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. मीन सिंगल रिएक्शन है एक सबस्ट्रेट में से एक ही प्रोडक्ट मिलता है आगे कुछ भी नहीं है तो उसको हम वेलोसिटी भी बोल देंगे. दिस प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एमोंग अदर फैक्टर्स. दूसरे फैक्टर भी और टेम्परेचर से भी इफेक्ट होती है. अ जनरल रूल ऑफ द थंब is that doubles of the decrease by the a for every 10 degree changes in the either direction. मीन्स देखो सपोज कोई केमिकल रिएक्शन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलो क्या होता है तो 10 मॉलिक्यूल्स 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनते हैंगे 10 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनते हैंगे. तो क्या होगा इफ यू कीप 15 डिग्री सेंटीग्रेड डेट इज द टाइम लिमिट इज सेम 1 मिनट व्हाट विल बी हैपन इट टर्न्स इसमें 20 सबस्ट्रेट का क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा डबल होता जाएगा. जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो आपको नहीं मिलना चाहिए वही अपने एक मिनट के अंदर सिंगल मिनट के अंदर 40 सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. बोलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो दैट 1 मिनट टाइम इट सेल्फ दैट द 80 सबस्ट्रेट टर्न्स इनटू द प्रोडक्ट. अब बोलो इफ यू गो रिवर्स के 10 डिग्री रिवर्स करते हैं तो उसका रेट कितना होता है उससे हाफ होता चला जाता है. When enzyme catalytic reactions are observed, the rate would be the vastly higher than the same at the catalyzed reaction for the same. चलो इसके ने बाद में दूसरा उसका उसकी पिक्युलिटी केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल क्या हैगा. तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है वही बोलो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर दिस यू विल स्टडी एट द टाइम ऑफ द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में ये अपने रिएक्शन आएगा. तो बोलो ये जो बनता है तो यहाँ पे बनता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस मीन्स कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ये क्या आएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज उसका वो है एंजाइम है. चलो in the absence of enzyme this reaction is very slow with about 200 molecules of H2S being formed in an hour means 60 minutes. 16 मिनट में बोलो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 200 H2CO3 means 200 CO2 200 H2 और ये अपना मिलेगा. But when in this presence of the carbonic anhydrase what happen by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase the reaction speeds dramatically with about 6 lakh 60 lakhs molecules. देखो काउंट करो कितने ने मॉलिक्यूल्स बनते हैं 60 लाख 6 के ऊपर कितने जीरो है 1 2 3 4 5 क्यों ऐसा हो रहा है. यस 1 2 3 6 लाख मॉलिक्यूल्स नॉट 60 लैक्स वो 60 सेकंड पे से मैं बोल दिया सॉरी. तो बोलो क्या होता है उसके अंदर विथ अबाउट मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड इन एवरी सेकंड. बोलो 1 सेकंड टाइम में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 6 लाख. वो 60 सेकंड गिनने की ना वो 1 मिनट करने के लिए उसके लिए वो मेरे भूल हो गई. The enzyme has accelerated the rate of reaction about 10 million times. कितना टाइम 10 millions 1 million means lakhs. The power of enzyme is incredible indeed. हम समझ भी नहीं सकते इतना है. There are thousands types of the enzyme. जितनी रिएक्शन इतने एंजाइम आएंगे
thousands of in our cell, in our body, millions and millions maybe enzymes are present. There are thousands of types of the enzymes. Such a catalytic is unique. एवरी कैटेलिक रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम है, केमिकली और मेटाबॉलिक रिएक्शन. अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे. हाईलाइट कर दो ये इसको. मेटाबॉलिक पाथवे किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे लिखा है, उस पे से ही समझाऊंगा. ग्लूकोज टर्न्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड. ये क्या हैगा? तो बोलो ये अपने क्या हैगा? मेटाबॉलिक पाथवे. हाउ इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे? तो आपको आगे अपने जाके आएगा. मैं 2-3 स्टेप ही बोलूँगा. ग्लूकोज टर्न्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इट टर्न्स इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टर्न्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. दिस फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टर्न्स इनटू 2 molecules of फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. वो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से भी 4 स्टेप होते हैं. 1 2 3 4 4 स्टेप होते हैं. एंड देन इट टर्न्स इनटू पायरुविक एसिड 2 molecule. तो बोलो हियर नंबर्स ऑफ रिएक्शंस आर स्टेप बाय स्टेप आते, तो इसको ना बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन. और ये मेटाबॉलिक जो पाथवे है रिएक्शन से, इसमें इसके लिए कोई एक एंजाइम होगा, यहाँ पे दूसरा एंजाइम आएगा, यहाँ पे तीसरा एंजाइम आएगा. मीन्स ईयर 1 एंजाइम, ईयर 2nd एंजाइम, ईयर अदर एंजाइम, ईयर अदर एंजाइम. यहाँ पे इस इट विल कंटिन्यू. Actually, a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid, though 10 different enzyme catalyze. कितने आते हैं एंजाइम? 10 different enzyme. When you study respiration in chapter 14, you will study this reaction. At this stage, you should know that there is a very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction gives rise to a variety of metabolic end product. बोलो क्या होएगा? 1 के 2 इसमें से रिएक्शन ऐसे चेंज हो जाएंगे तो एंड प्रोडक्ट बदल जाता है. मीन्स व्हेन देयर इज अ मेटाबॉलिक पाथवे यू कैन नॉट फिक्स दैट के एवरी टाइम यही आपको प्रोडक्ट मिलेगी. एंजाइम चेंज हो जाएगा या तो कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी चेंज हो सकती है, और 1-2 स्टेप ज़्यादा कम भी हो सकते हैं. इन आवर स्केलेटल मसल मीन्स टाइटेड मसल, अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म. अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म. बोलो क्या होता है हमारे टाइटेड मसल में? मीन्स स्केलेटल मसल. बोलो क्या हुआ? ग्लूकोज टर्न्स इनटू द एनारोबिक कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट टर्न्स इनटू द लैक्टिक एसिड. एंजाइम चेंज हो जाएंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट टर्न्स इनटू पायरुविक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल. देखो आप समझ सकते हो, सबस्ट्रेट वही है, कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, दूसरे एंजाइम एक्टिवेट होंगे और एंड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. Under normal aerobic condition, pyruvic acid is formed. In yeast, during the fermentation, the same pathway leads to the formation of ethanol, means alcohol. अब बोलो यीस्ट में जब हम यही देखेंगे तो बोलो क्या होगा? ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बोलो लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, क्या बोलता है? इथेनॉल बनता है. क्या आपने बनता है उसमें से? इथेनॉल बनता है. That is one kind of alcohol. Hence, in different condition, different products are possible. Means enzyme तो है, reaction भी है, pathway भी है, but different enzyme, different condition, end product change हो जाता है. These are the peculiarity of the chemical reactions. तो ये सब chemical reaction की peculiarity आपको आनी चाहिए. इससे आगे का हम next time करेंगे. Okay, best of luck.